Let us learn balancing of chemical equations by ion electron method. Good morning students. We have been learning unit 8 redox reaction of class 11. Up till now we have learned what redox reactions are, what is reduction, oxidation. Then we also learned various types of redox reactions in previous lectures. Today we are going to learn how to balance a chemical equation by using ion electron method. In first unit we have learned to balance chemical equations by hit and trial method and by partial equation method. Here, to balance ionic equations, we need ion electron method, and sometimes we can also use oxidation number method. Okay, so first of all, let us learn ion electron method. To learn this method, you must know how to find oxidation number. You can revisit previous lectures. In one lecture, we have learned various rules which are used to balance chemical equations. Various rules which are used to find oxidation number of atoms in combined state. So by using those rules, we will use this method to balance equations. For example, I have written an equation here. This is a chemical equation. This is in ionic form. Some species are charged, some are neutral. And you see it is not balanced. Okay. H is not on this side. And we have to balance it by ion electron method. And one more thing, in parenthesis it is given acidic medium. So sometimes the reactions take place in acidic medium, whereas sometimes they take place in alkaline medium or basic medium, and sometimes neutral also. So one step of balancing changes when medium changes from acidic to basic to neutral. Let us learn how to balance this equation if it is taking place in acidic medium. Let us start. First of all, we have to note down the equation which we want to balance. This is our first step. Then the charges should be highlighted. जो उसने ऑलरेडी स्पीसीज के चार्ज दिए हुए हैं ना, उसको आप हाईलाइट कर लो. ये तो अकेला ही है Mn2 पॉजिटिव, नो नीड. HSO4 तीन चीजें हैं इसमें, टोटल के ऊपर एक नेगेटिव हमको बचाना है. ओके, ऐसे MnO4 टोटल के ऊपर वन नेगेटिव, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, नाउ अगला स्टेप क्या है? बाय यूजिंग rules for finding oxidation numbers, you have to write oxidation number of each atom on its top. Okay, here ON of O is -2 as per rule. एक नेगेटिव हमको बचाना है, तो Mn के ऊपर आएगा +7. +7, 8 नेगेटिव, but remains 1 negative. O is -2, S will be +4. Similarly, ये ऑलरेडी +2 है, अकेला ही है, नो नीड. Here O is -2, H is +1, एक नेगेटिव हमको बचाना है, तो दिस इज +6. Am I right? This is okay. Now we have to find out oxidation half reaction and reduction half reaction. ध्यान से देखो, +7 Mn जो है +2 बन रहा है, मतलब ON of Mn is changing from +7 to +2. क्या हो रहा है? You know, जब पॉजिटिव स्टेट डिक्रीज करती है, that means electrons are being gained, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं.
तो रिडक्शन इज गोइंग ऑन, दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ये? 5। ओके, तो एक Mn जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। नाउ सी सल्फर, ON of sulfur is changing from +4 to +6, and you know when ON positive state increases, that means electrons are lost, electron lose हो रहे हैं, oxidation is going on, this is oxidation। और +4 से जब +6 बनना है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे? 2। ठीक, दिस इज ऑक्सीडेशन, दिस इज रिडक्शन। ऑक्सीजन की स्टेट इधर भी -2 है, इधर भी -2 है, H उधर है ही नहीं, है ना। सो इतना काम, ये फर्स्ट स्टेप है टू बैलेंस दिस इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम। नाउ एक्सट्रैक्ट दीज इक्वेशंस। पहले हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन, SO2 gives HSO4, जो उसने एक नेगेटिव दिया हुआ है वो हमने बोलना नहीं है, इसलिए हमने इसको हाईलाइट कर दिया। ये हो गई ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब देखा मैंने कितना स्पेस छोड़ दिया, यहाँ पे हमने कुछ करना है, दैट्स वाई पहले ही हमने स्पेस छोड़ा है। अब रिडक्शन निकाल लो बाहर, MnO4 रेजिडुअल चार्ज जो है 1 नेगेटिव वो भूलना नहीं, गिव्स Mn2+। ठीक है, ये है रिडक्शन रिएक्शन। तो ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। नाउ अब क्या करना है? अब आपने पूरी इक्वेशन में जिस स्पीसीज के ON को फर्क पड़ा है, जिसका ON इधर से इधर आने में वेरी किया है, चेंज किया है, उसका नंबर इक्वल कर दो। जैसे इसमें सल्फर को फर्क पड़ा ना, सल्फर का +4 से +6 हुआ था, तो दोनों तरफ सल्फर इक्वल करने हैं। यहाँ पे ऑलरेडी इधर भी 1 सल्फर, इधर भी 1 सल्फर, नो नीड, दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़ी, जहाँ पड़ेगी वहाँ आप इसको कर लोगे। ओके, और Mn देखो, इस इक्वेशन में Mn को ON चेंज हुआ है, लेकिन Mn की गिनती इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ये स्टेप हम मोस्टली भूल जाते हैं और फिर आगे सारा पाथ ही, सारा प्रोसेस ही गलत हो जाता है, बैलेंस नहीं होता। ठीक है, तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट स्टेप होता है कि दोनों साइड पे ऑक्सीजन इक्वल करने हैं। अब ऑक्सीजन इक्वल कैसे करेंगे? बाय एडिंग वाटर। दोनों में से जिस साइड पे भी वाटर डालना पड़े आप डाल सकते हो, उतना कि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। ओके, तो इधर देखो, देयर आर 2 O एटम्स, हियर देयर आर 4 O एटम्स। चार्ज को नहीं देखना, सिर्फ O एटम देखने। इधर 4 है, इधर 2 है, दोनों तरफ बैलेंस करने हैं, तो लेफ्ट साइड पे मैं 2 वाटर ऐड कर देता हूँ। ओके, दूसरी इक्वेशन में MnO4 है, इधर Mn नहीं है, इधर 4 O एटम है, इधर कोई भी नहीं है, तो here we add 4 molecules of water। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। एक स्टेप और करना है, क्या कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। देखो इस इक्वेशन में क्या हुआ था, सल्फर 1 है, सल्फर का ON +4 से +6 हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, मतलब सल्फर इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। लूज मतलब वो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख लिया। ठीक, सिमिलरली इस इक्वेशन में भी Mn की स्टेट +7 से +2 हुई है, तो Mn जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो गेन कर रहा है मतलब वो रिएक्टेंट साइड पे आएंगे, तो रिएक्टेंट साइड पे 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इतना काम कर लिया। एक बार फिर सुनो, इक्वेशन लिख ली,
ON निकाल लिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, उनको बाहर निकाल के लिख लिया। देन जिस स्पीसीज का ON चेंज करता है उसको बैलेंस करना, पहले यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी थी। देन इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेने हैं, ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट साइड पे आएंगे, रिडक्शन में रिएक्टेंट साइड पे आएंगे। देन आपने ऑक्सीजन दोनों साइड पे सेम करने हैं बाय एडिंग वाटर, वाटर किसी भी तरफ ऐड कर लेना है। ओके, नाउ अगला स्टेप ये होता है कि दोनों साइड का चार्ज सेम होना चाहिए, जितने प्लस माइनस इधर है उतने ही उधर। अगर नहीं है तो वो हमको बैलेंस करना है चार्ज बाय एडिंग H+ और OH-। आप समझ ही गए होंगे कि अगर मीडियम एसिडिक है तो हम H+ ऐड करेंगे दोनों में से किसी भी साइड, और अगर मीडियम अल्कलाइन है, बेसिक है, तो हम OH- ऐड करेंगे। दिस इक्वेशन इज इन एसिडिक मीडियम, तो यहाँ पे हम H+ ऐड कर सकते हैं चार्ज बैलेंस करने के लिए। लेकिन ये स्टेप अभी करना है, पहले नहीं कर लेना, सारा काम स्टेप बाय स्टेप है। तो देखो इस तरफ ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, नो चार्ज। इस तरफ ये 1 नेगेटिव, ये 2 नेगेटिव, 2 and 1 3 नेगेटिव है। ठीक है, तो चार्ज बैलेंस करना है, कैसे करेंगे? अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम सिर्फ H+ ही डाल सकते हैं, नथिंग एल्स, एक H एक प्लस। तो इधर न्यूट्रल है, इधर 3 नेगेटिव है, क्या करें? तो इधर अगर 3H+ ऐड कर देंगे तो ये साइड भी न्यूट्रल हो जाएगी। ओके, अच्छा, नाउ इस तरफ 5 and 1 6 नेगेटिव है, MnO4 एक नेगेटिव है, 5 इलेक्ट्रॉन, पांचों नेगेटिव है, 5 और 1 6 नेगेटिव है। इधर क्या है? 2 पॉजिटिव है। क्या करें? दोनों साइड में चार्ज सेम चाहिए, और हमारी लिमिटेशन ये है कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है, हम ओनली H+ ही ऐड कर सकते हैं, हमको और कुछ भी अलाउड नहीं है। तो क्या करोगे? सोचो क्या करेंगे। इस तरफ 5 और 6 है, अगर मैं इधर 8H+ ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? 8 पॉजिटिव है, 5 and 1 6 नेगेटिव है, 8 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, बचा क्या? 2 पॉजिटिव, इधर भी 2 पॉजिटिव, इधर भी 2 पॉजिटिव। नाउ चार्ज इज बैलेंस्ड। गॉट इट? सो दिस स्टेप इज क्लियर। अब क्या करना है? अब हमने इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने हैं, जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उतने ही गेन होंगे। ओके, तो लूज हो रहे हैं 2, गेन हो रहे हैं 5, दिस इज नॉट जस्टिफाइड। तो व्हाट टू डू, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ताकि इलेक्ट्रॉन 5 इंटू 2 10 हो जाएंगे, ये 2 इंटू 5 10 है, इलेक्ट्रॉन हमारे कैंसिल हो जाएंगे, और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। ऐड करके ये बन जाएगी ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल करो, 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। ठीक, नाउ रिएक्टेंट में रिएक्टेंट ऐड करो, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ऐड करो, रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करके। तो पहले को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो यू गॉट 5SO2 प्लस 5 इंटू 2 10H2O, ऊपर के रिएक्टेंट्स हो गए। अब नीचे के रिएक्टेंट्स, इनको मल्टीप्लाई करना है 2 से, प्लस 2MnO4 जिसके ऊपर है 1 नेगेटिव, ये नहीं भूलना, प्लस 16H+। ठीक, तो ये हो गया रिएक्टेंट में रिएक्टेंट का एडिशन। सिमिलरली प्रोडक्ट में प्रोडक्ट 5HSO4 नेगेटिव, ठीक, प्लस 3 इंटू 5 ये हो गया 15H+। ओके, अच्छा, अब इसमें आओ, ये क्या बन गया? 2Mn2 प्लस
4 इंटू 2 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। ठीक है, अब दोनों साइड देखो, जो चीज़ कैंसिल होती है कैंसिल कर दो। तो देखो इधर 10 वाटर है, इधर कितने वाटर है 8, तो 8 वाटर इधर है, ये 10 के 8 कैंसिल हो गए, बाकी बचे 2। ओके, अब देखो H प्लस इधर 16 है, इधर 15 है, ये 15 सारे कैंसिल हो गए, ये 16 में से बचा कितना ओनली 1, एक H प्लस बच गया। कुछ और होता तो वो भी कर सकते हो, नहीं होता बस ना। इसको लिख देते हैं फाइनली 5SO2 प्लस 2 molecules of water plus 2 ions of MnO4 negative and 1 H plus, क्योंकि मीडियम एसिडिक है H प्लस आ सकते। ठीक है, और प्रोडक्ट में आया HSO4 नेगेटिव, साथ में क्या आएगा 2 Mn2 प्लस, बस ये तो सारे कैंसिल ही हो गए थे, तो ये बन गया। अब चेक करो, मटेरियल बैलेंस हो गया, 5S है, इधर भी कितने S हैं 5SO2 HSO4, ये देखो इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करना था, 5HSO4 इसको करना है 2 से 2 Mn, 5 सल्फर, ये भी 5 सल्फर, बैलेंस्ड। नाउ Mn चेक करो पहले, 2 Mn है, 2 Mn है। ओके, अब आ जाओ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे, पहले वो चेक करते हैं। 5 इंटू 2 10 हो, ये रहे 10 एंड 2 12, 12 एंड 2 इंटू 4 8, 12 और 8 हो गए 20 वो एटम्स लेफ्ट साइड पे है। इधर कितने हैं 5 इंटू 4 20, वो बैलेंस्ड हो गए। नाउ हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं, 2 इंटू 2 4H ये रहे, एक H ये रहा, 4 and 1 5H एटम है, इधर भी 5। तो दोनों साइड का मैटर बैलेंस हो गया, मटेरियल बैलेंस हो गया, बट दोनों साइड का चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए, वो भी देखते हैं। इस तरफ क्या चार्ज बचा 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, इस स्पीसीज के ऊपर नेगेटिव और ये गिनती में 2 है, 2 नेगेटिव है, ये 1 प्लस चार्ज है, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, बचा क्या 1 नेगेटिव। और इस साइड पे देखो ये स्पीसीज नेगेटिव है, टोटल 5 है गिनती में, 5 नेगेटिव के हैं, ये 2 पॉजिटिव और ये 2 है, यानी कि 4 पॉजिटिव के हो गए, 5 नेगेटिव के 4 पॉजिटिव के, तो बचा उधर भी 1 नेगेटिव, इधर भी 1 नेगेटिव। तो अगर आपका दोनों साइड्स का चार्ज भी बैलेंस है और मटेरियल तो बैलेंस है ही, ओनली देन इट इज राइट, ओनली देन इट इज ए बैलेंस्ड आयनिक इक्वेशन। ओके, सो वंस अगेन लेट अस ट्राई टू मेमोराइज द स्टेप्स बुक्स में लिखे हुए हैं, वो लिखने की जरूरत नहीं है, उनको फॉलो करना है। एक बार फिर सुन लो सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहला काम इक्वेशन लिख लिया, दूसरा काम उसके लिए पिछला लेक्चर देखो, रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर, वो रूल्स फाइंड करके हमने सबका ओवन लिख लिया। तीसरा स्टेप, इस इक्वेशन में आइडेंटिफाई करो कि ऑक्सीडेशन हाफ क्या है, रिडक्शन हाफ क्या है। नेक्स्ट स्टेप, दोनों को बाहर निकाल लो इक्वेशंस को। नेक्स्ट स्टेप, जिस एटम को फर्क पड़ रहा है ओवन में, जिसका ओवन चेंज हो रहा है, उसकी गिनती बराबर कर लो। नेक्स्ट स्टेप, इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो, ऑक्सीडेशन में ऐड होंगे प्रोडक्ट साइड पे, रिडक्शन में ऐड होंगे रिएक्टेंट साइड पे। अगला स्टेप क्या करना है कि ऑक्सीजन इक्वल करने हैं दोनों साइड पे, कैसे, वाटर ऐड करके। और अगला स्टेप जो है वो है कि दोनों साइड का चार्ज इक्वल करना है, अगर एसिडिक मीडियम है तो H प्लस डाल के,
और नेक्स्ट स्टेप है कि इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना है, तो इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो जो भी रिक्वायर्ड फैक्टर है। इन सम केसेस दिस स्टेप मे नॉट बी रिक्वायर्ड, दोनों में पहले ही हो सकता है बराबर हो, है ना, तो वो डिपेंड करता है इक्वेशन टू इक्वेशन। और फाइनली उनको ऐड कर लो और जो चीज़ कैंसिल होती है कैंसिल कर लो, बाकी जो बचा उसमें मटेरियल भी बैलेंस होना चाहिए और उसमें चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए। सो इन दिस वे वी कैन बैलेंस an ionic equation in acidic medium by using ion electron method. चलो अब ऐसे ही एक इक्वेशन बैलेंस करते हैं इन बेसिक मीडियम। ये आयनिक रिएक्शन है, इट इज टेकिंग प्लेस इन अल्कलाइन मीडियम, बेसिक मीडियम। तो इसको भी हमको बैलेंस करना है बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ओके, तो एक ही स्टेप का डिफरेंस आएगा, बाकी सारे स्टेप सेम है। एक स्टेप कौन सा, जहां हम H प्लस ऐड करते थे, अब यहाँ हमको OH नेगेटिव ऐड करना है, H प्लस नहीं करना। दैट्स इट। तो लेट अस लर्न। सबसे पहले जो चार्ज स्पीसीज का ऑलरेडी है उसको हाईलाइट कर लो कि MnO4 टोटल के ऊपर हमको एक नेगेटिव बचाना है। आई अकेला ही उसके ऊपर नेगेटिव उसने डाला हुआ है खुद ही, हमको कुछ भी नहीं करना। MnO2 न्यूट्रल स्पीसीज है, ये भी न्यूट्रल स्पीसीज है। ओके, नाउ रूल्स फॉर फाइंडिंग ON यूज करके ON लिख लेते हैं। O का -2 होता है, 4 2 8, एक नेगेटिव हमको बचाना है, तो Mn पे आ गया +7। ये उसने खुद ही दे रखा है, नो नीड फॉर अस। यहाँ पे -2, ये हो गया +4 क्योंकि ये न्यूट्रल स्पीसीज है। 2 2 4 नेगेटिव, 4 पॉजिटिव डाल दिया। अब ये देखो I2, इसका क्या आएगा ON, क्योंकि I2 दोनों I हैं, एलिमेंटल फॉर्म में है ये, तो इसका ON हो गया 0, रूल नंबर 1। अब इसमें से आइडेंटिफाई करो कि कौन सी इक्वेशन बनेगी ऑक्सीडेशन और कौन सी बनेगी रिडक्शन हाफ। तो Mn का नंबर +7 से +4 हो रहा है, दैट मीन्स इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये रिडक्शन हो रही है, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। 7 से 4 है, 3 गेन करके +7 से +4 हो। O का नंबर -2 इधर है, इधर भी सेम है, इसको कुछ नहीं हो रहा। I- से I 0 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, मतलब I नेगेटिव, आयोडाइड आयन की हो रही है ऑक्सीडेशन और ये 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है इसमें। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। अब हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को बाहर निकालना। पहले निकालते हैं ऑक्सीडेशन, I नेगेटिव, थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं। अब तो आप समझ गए क्यों छोड़ा, I2, ठीक है। ये आ गई ऑक्सीडेशन हाफ। सिमिलरली रिडक्शन हाफ को बाहर निकाल लो, MnO4 नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं भूलना, ये भूल जाओगे तो फिर फंस जाओगे, गिव्स MnO2, ठीक है। यहाँ स्पेस छोड़ा है, यू नो व्हाट, रिडक्शन। ये काम भी हो गया। अब अगला काम क्या था, आपको बताया था कि जिस स्पीसीज के ON को फर्क पड़ा है, जिसका ON चेंज हुआ है, उसको दोनों साइड पे बराबर कर लो, ठीक। जैसे ऑक्सीडेशन में I का नंबर चेंज हुआ है -1 से 0, इधर I 1 ही है, इधर I 2 है, तो हम यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं बस। इसमें Mn को फर्क पड़ा है, इधर Mn 1 है, इधर भी Mn 1 है, तो हम तो कुछ भी नहीं करना, लेकिन इसको चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अगर अगला स्टेप पहले कर दोगे तो फंस जाओगे, स्टेप बाय स्टेप चलेगा ये काम। अगले स्टेप में क्या करना है, हमने, आपको याद आ गया होगा कि ऑक्सीजन इक्वल करने हैं वाटर ऐड करके, ठीक। पहली इक्वेशन में तो ऑक्सीजन है ही नहीं, दूसरे में इधर 4 O है, इधर 2 O है, तो हम सिंपली इधर
2 मॉलिक्यूल्स वाटर ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ठीक है। लेकिन एक बात और देखो, जब इधर 2 वाटर ऐड किए आपने, ठीक है, वो तो बैलेंस हो गए, बट साथ में 2 × 2 4H भी तो आ गए। चलो वो तो OH से हो जाएंगे, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन लिखो किसको कितने लूज गेन हो रहे हैं। I नेगेटिव से I 0 हो रहा है तो एक I को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है। 2 I हमने बैलेंस किए थे, तो मतलब राइट साइड पे आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आपने ये बैलेंस ना किया होता तो आप एक इलेक्ट्रॉन लिख लेते, अगला सारा सिस्टम खराब हो जाता। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इधर Mn+7 से Mn+4 हो रहा है और एक ही Mn है, तो एक Mn 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब दोनों साइड का चार्ज बैलेंस करना है। कैसे? अगर एसिडिक मीडियम है तो H+ ऐड करके दोनों में से किसी भी साइड, और अगर बेसिक मीडियम है तो OH नेगेटिव आयन करके ऐड करके दोनों में से किसी भी साइड। तो इधर 2 नेगेटिव है, इधर भी 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है पहले से, हमको कुछ भी नहीं करना। इसमें एक नेगेटिव और 3 नेगेटिव, टोटल 4 नेगेटिव है, और इधर कोई नेगेटिव नहीं है, तो राइट साइड पे हम 4 OH नेगेटिव ऐड कर दिए। ये स्टेप हो गया। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है कि जब 4 OH नेगेटिव ऐड किए तो ऑक्सीजन का नंबर भी चेंज हो गया ना। 4 OH के, 2 O वाटर के और 2 MnO2 के थे। अब राइट साइड पे टोटल O कितने हो गए, 2 × 4 and 4 8, और इधर O कितनी है, 4। और आपको इससे पिछले वाला रूल बताया था कि ऑक्सीजन दोनों साइड पे बैलेंस करनी है, क्या ऐड करके, वाटर, और किसी भी साइड पे ऐड कर सकते हो, रिएक्टेंट साइड पे भी, प्रोडक्ट पे भी। तो अब ऑक्सीजन गड़बड़ हो गया, तो इधर है ऑक्सीजन 2 2 4 और 4 8, इधर है 4, तो इस साइड पे हम 4 वाटर और ऐड कर देते हैं ताकि O बैलेंस रहे। बाकी सब अपने आप हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं, ठीक। बस अब अगला काम क्या है, दोनों साइड दोनों इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करने हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन 2 है, इसमें 3 है, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। रिएक्टेंट्स में रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट्स, दोनों साइड का मटेरियल भी बैलेंस होना चाहिए और दोनों साइड का चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए, तब ये सही होएगा। तो देखते हैं, 3 × 2 6, 6I नेगेटिव प्लस, नीचे वाले में आ जाओ, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2 MnO4 और MnO4 के ऊपर एक नेगेटिव है, प्रॉब्लम में दिया हुआ है, ये भी भूल जाना, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए, 3 × 2 6, 2 × 3 6, इलेक्ट्रॉन तो गए, प्लस 4 × 2 8 H2O। ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड। तो 3I2 प्लस 2 MnO2 प्लस 2 × 2 4 H2O प्लस 4 × 2 8 OH नेगेटिव। ये हो गई रिडॉक्स रिएक्शन ओवरऑल। अब अगर कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल करो, होता है कैंसिल। इधर वाटर 4 है, ये चारों के चारों इस 8 में से 4 के साथ कट गए, बाकी बचे 4,
कुछ और होता तो देख लो, और मुझे लगता है कुछ भी नहीं बचा। अब देखो क्या है, 6i नेगेटिव प्लस 2MnO4 नेगेटिव प्लस 4 molecules of water to give 3 molecules I2, 2 MnO2, वाटर चारों कैंसल्ड है और 8 OH नेगेटिव। अब चेक करो दोनों साइड का मटेरियल और चार्ज बैलेंस हुआ कि नहीं। 6 आई है, 3 × 2 6 आई है, 2 Mn 2 Mn, ठीक। ऑक्सीजन है 4 × 2 8 एंड 4 12। इधर कितने हैं, 2 2 4 एंड 8 12, वो बैलेंस हो गया। H 4 × 2 8 है, इधर भी H 8 है, मटेरियल तो बैलेंस हो गया। नाउ चार्ज 6 नेगेटिव लिए पड़ा, 2 नेगेटिव लिए पड़ा, 6 और 2 8 नेगेटिव, इधर ये पड़ा 8 नेगेटिव, दोनों साइड पे 8 नेगेटिव है, चार्ज भी बैलेंस्ड है, मटेरियल भी बैलेंस्ड है। नाउ दिस इज ए बैलेंस्ड आयनिक इक्वेशन in alkaline medium, basic medium, and we have done it by using ion electron method. So in this way you can balance any ionic equation in acidic and basic media by using ion electron method. I hope you enjoyed, but it will be comfortable if you do it patiently, calmly. बड़ा कूल हो गया अगर बैलेंस करोगे, कोई भी स्टेप मिस नहीं करोगे, देन यू विल बी एबल टू बैलेंस ऑल द क्वेश्चंस। अपनी बुक्स पकड़ो, एनसीईआरटी बुक में भी एक्सरसाइज है एंड पे कुछ बैलेंस करने वाली अनबैलेंस्ड इक्वेशंस हैं, और जो दूसरी बुक्स हैं आपकी मॉडर्न, प्रदीप न्यू कोर्स, जेबीडी वगैरह, दिनेश वगैरह, उनमें भी देर आर सो मैनी सोल्ड एग्जाम्पल्स एज वेल एज अनसोल्ड। तो एटलीस्ट 4-5 इक्वेशंस अभी बैलेंस करोगे तो आपको ये मेथड रट जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कोई नया टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शन का। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।